السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو دعا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس دعا کو ہر مسلمان، مرد عورت، لڑکا لڑکی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دعا تو آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے۔ یہ دعا بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے۔ یہ دعا ہماری زندگی میں ہمیں ضرور یاد ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور زیادہ تر جو پریشانیاں ہیں وہ لوگوں کی پتہ ہے کیا ہے؟ میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں۔ کیا کریں مفتی صاحب، قرضے اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ قرضہ بہت ہو گیا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، اور ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے لوگ تعویذ تک لے کر آتے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کرواتے ہیں، مزاروں پر جا کر چادر بھی چڑھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا کہ اگر ہمیں کوئی ایسی دعا مل جائے قرض سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، جو دعا تمام پیغمبروں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہو۔ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ دعا کتنی پاورفل ہوگی جو تمام پیغمبروں کے سردار آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی نے ایک ایسی دعا بتائی ہے، آج وہی دعا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تمام چیزوں کو چھوڑو، اس دعا کو ضرور یاد کر لو۔ بغیر دیکھے نہیں یاد کر سکتے تو دیکھ کر پڑھ لو، لیکن صبح اور شام اس دعا کو پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی نے جن صحابی کو یہ دعا سکھائی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو جب پڑھا تو قرض میرے اوپر سے دور ہو گئے، پرابلمز اور پریشانیاں میرے پاس سے ختم ہو گئیں، اور میں سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ اور یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حدیث ہے بخاری شریف کی، جس میں یہ دعا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی، انصاری صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا، افسوس میں، غم میں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے، ارے بھائی کیا بات ہے، مسجد میں تم بیٹھے ہو، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، کوئی ذکر و اذکار اور قرآن شریف کی تعلیم کا بھی وقت نہیں ہے، کمانے کا وقت ہے، لوگ دنیا میں بزنس وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، تم مسجد میں بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا بتاؤں، قرضے اتنے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، سوچتا ہوں کیسے ان قرضوں کی ادائیگی ہوگی، اور یا رسول اللہ پریشانیاں، غم اتنے ہیں کہ وہ غم بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں، کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پریشان مت ہو، میں کچھ کلمات تمہیں سکھا دیتا ہوں، ان کلمات کو صبح شام پڑھنا، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے، ٹینشن پرابلمز ختم ہو جائیں گی، اینزائٹی وغیرہ سب سے چھٹی مل جائے گی تمہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ اس کو پڑھ لیا کرو، صبح شام تو ضرور پڑھو، باقی تمہاری مرضی ہے۔ تو وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے غموں کو دور کر دیا، اور غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے راستے بنا دیے کہ جتنے میرے اوپر قرضے تھے وہ سارے کے سارے قرضے بھی ختم ہو گئے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، عاجزی اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے دباؤ اور لوگوں کے غلبے سے۔ اس دعا کا یہ ترجمہ ہے، اور اگر میں ایک ایک لفظ کو تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کروں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس دعا کے معنی اور اس دعا میں جو مانگا گیا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ مان لیجئے اگر ہم نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ وہ اس دعا کو مانگیں گے، اور پورے مہینے میں 150 مرتبہ اس دعا کو مانگا جائے گا۔ چلو 100 مان لو، ہم جیسے گنہگار بھی اگر 1-2 ٹائم بھی اگر اس دعا کو مانگ لیں اللہ سے دل لگا کر، تو
2 बार या 3 बार, तो 100 बार मान लो पूरे महीने में। पूरे साल में कितना हो गए? 1000 बार। चल पूरे साल में छुट्टी वुट्टी भूल भी गए, कुछ भी हो, तो 1000 बार। अगर पूरे साल में 1000 मरतबा हमने इस दुआ को अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने एक बार इस दुआ को कबूल कर लिया, तो इमेजिन करके देखो, अगर ये दुआ हमारी ज़िंदगी में एक बार भी कबूल हो गई ना, तो दुनिया की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, आखिरत की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। और इस दुआ को मांगने पर कुछ मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह के नबी की बताई हुई दुआ है, तो अल्लाह के नबी की बताई हुई दुआ को फॉलो करने पर तो वैसे ही अजर मिलता है, कुछ मिले ना मिले, लेकिन पक्का मिलेगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कर्ज़ों से परेशान हो, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, एंजाइटी है, तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, इस दुआ को अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो और इस दुआ को याद कर लो और अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को ये दुआ ज़रूर शेयर करो। अब देखो इस दुआ का तर्जुमा क्या है, मिनल हम्मी वल हज़नी। तो हम कहते हैं गम से, गम को कहते हैं हम, सॉरी फ़िक्र को कहते हैं, हम कहते हैं फ़िक्र को, और हज़न कहते हैं गम को। फ़िक्र किस बात की? कि भाई आगे क्या होगा। जैसे आपको एक फ़िक्र लगी रहती है, अरे बच्चों की शादियाँ होनी हैं, कहाँ से इंतज़ाम होगा, तो वो फ्यूचर की फ़िक्र है कि मुस्तकबिल में मेरे बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ा कैसे पाऊँगा। बीमारी कोई लगी हुई है, अब उस बीमारी का इलाज होना है फ्यूचर में, तो आगे जो होने वाला है उसकी जो फ़िक्र आपको सवार है, उसको कहा जाता है मिनल हम। तो अल्लाह ताला उससे आपको बचाएगा। और हज़न कहते हैं गम से। मान लीजिए आपके बच्चे का इंतकाल हो गया, आपका कारोबार में नुकसान हो गया, या आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई, तो वो लग चुकी है ना, पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसका गम आपको लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला उससे तुम्हें महफूज रखेगा। वल अज्ज़, वल अज्ज़ कहते हैं आजिज़ी से, वल कसल कहते हैं काहिली से। आजिज़ी से मतलब, आजिज़ी किसको कहते हैं? आजिज़ी कहते हैं कि आप नमाज पढ़ना चाहते लेकिन नहीं पढ़ पाते, आप अच्छे काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, आप सुबह फजर में उठना चाहते हो लेकिन नहीं उठ पाते, आप मस्जिद में बैठे हुए हो, किसी मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए गए लेकिन नमाज पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है। तो ये जो रूहानी अमराज हैं, यानी रूहानी बीमारियां, बोग़्ज़, जलन, हसद, कुरान की तिलावत आप करना चाहते हो नहीं कर पाते, अच्छे कामों को आप करना चाहते हो नहीं कर पाते, तो आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा होगी, वो काबिलियत पैदा होगी। और कसल किसको कहते हैं? काहिली से, यानी आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, कर भी सकते हो, लेकिन सुस्ती इतनी भरी हुई है जिस्म के अंदर कि रोज़ाना सोचते हो कि कल से करूँगा, फिर वो कल आती है, फिर सोचते हो कल से करूँगा, और वो कल आज तक आ ही नहीं पा रही है। तो इससे भी अल्लाह ताला आपको बचाएगा। देखो कितनी गहरी और कीमती बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के अंदर हैं। वल जुबनी, जुब्न कहते हैं बुज़दिली से। बुज़दिली दुनिया वालों का खौफ, यानी अल्लाह के अलावा, अल्लाह का खौफ तो इतना नहीं है, दुनिया वालों का खौफ बहुत है। गुनाह करते वक्त अल्लाह का ख्याल नहीं आता, लेकिन एक छोटा सा बच्चा देख ले तो हाथ पाँव हिल जाते हैं, तो इसको कहते हैं बुज़दिली से। ऐसे ही आप किसी फंक्शन और प्रोग्राम में गए, आप नमाज का वक्त हो गया, वैसे नमाज पढ़ते हो लेकिन लोगों के सामने नमाज नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि वो एक बुज़दिली है। ऐसे ही सच बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, हक बात बोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना। तो ये तमाम जो अच्छे और कामों की जो आपके अंदर ताकत होना चाहिए, लेकिन समाज और मुआशरे के डर की वजह से, मान लीजिए निकाह है, निकाह आधा ईमान है, और निकाह सादगी के साथ करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, लेकिन आपके अंदर डर है मुआशरे और समाज का कि भाई रस्म व रिवाज को फॉलो करना पड़ेगा, मजबूरी है, तो ये बुज़दिली। और बुख्ल कहते हैं कंजूसी, यानी आप ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है लेकिन आप ज़कात नहीं दे पाते हो, मुकम्मल तौर पर ज़कात नहीं निकालते हो, क्योंकि आपके अंदर कंजूसी है। अल्लाह की राह में आप खर्च नहीं करते हो, सोचते हो करूँगा, लेकिन माल की मोहब्बत है, तो ये बुख्ल ये भी ख़त्म होगा इस दुआ से। और वज़लअद्दैन, दैन कर्ज़ के दबाव से, कर्ज़ का बाज़ दफ़ा दबाव होता है, इतना कर्ज़ का दबाव होता है कि लोग टेंशन में, बाकायदा लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जान तक दे देते हैं, तो कर्ज़ के दबाव से भी ये दुआ आपको महफूज रखेगी। वग़लबतिर रिजाल, और लोगों के गलबे से, यानी कोई दूसरा आपके ऊपर इतना हावी नहीं हो पाएगा कि आपकी एक पर्सनल लाइफ ही ख़राब हो जाए। ये इस पूरी दुआ का मोटा मोटा खुलासा है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो इस दुआ को अभी याद कीजिए, अपने बच्चों को याद कराइए, ख़वातीन याद करें, और इस दुआ को अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तब भी पढ़ना शुरू कर दो, ताकि अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो आने से पहले ही आपके बीच में रुक जाए, और ये दुआ जो है ना एक रुकावट बन के आपके सामने खड़ी हो जाए। इस दुआ को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।